بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ پاکستانی صحافت کے لیے آج ایک انتہائی سیاہ دن ہے۔ سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب ارشد شریف صاحب کینیا میں ان کا قتل ہوا ہے۔ کینین پولیس اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور جب سے یہ خبر منظر عام پر آئی ہے ایک عجب سی بے چینی اور ان گنت سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ارشد شریف صاحب نے دہائیوں پاکستانی صحافت کے نام کیے، دنیا نیوز کے ساتھ وابستہ رہے، یہاں پروگرام کرتے رہے، ڈائریکٹر نیوز رہے، کئی دیگر پاکستانی اداروں اور غیر ملکی اداروں کے ساتھ بھی وہ وابستہ رہے۔ اپنا نام، اپنی پہچان اور خاص ان کا انداز تھا۔ آج بہت یاد آ رہے ہیں اور شدت سے یاد آ رہے ہیں کہ اس طرح ناگہانی طریقے سے رخصت ہوئے ہیں۔ کینین پولیس نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی اس میں وہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ایک روڈ تھی جو نکلتی ہے کیوینیا سے مگادی کی جانب، ایک علاقہ ہے وہاں جاتی ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور پولیس آفیسرز نے فائر کیا، روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں رکے۔ یہ بھی ایک اور سٹیٹمنٹ بتایا گیا کہ ایک اور گاڑی کی تلاش تھی جس میں ایک بچے کا مبینہ اغوا ہوا تھا، اور اس چکر میں یہ غلط فہمی ہوئی۔ ذمہ داری بھی قبول کر رہی ہے کینین پولیس، کینین سرکار، اور ساتھ غلط فہمی کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کینین پولیس کے بارے میں ان کی خاتون اہلکار کیا کہہ رہی ہیں۔ آج پھر اس پر محترم مریم اورنگزیب کا بیان بھی سامنے آیا، دیکھیے وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ کی شناخت باڈی کی کر لی گئی ہے، اور وہاں کے جو گورنر ہیں نیروبی کے، ان کا بھی انوائے پولیس اور تمام سینئر اہلکار جو ہیں وہ اس وقت مورچری میں ایمبیسڈر کے ساتھ موجود ہیں۔ جو انیشل ان کا ایک طریقہ کار ہے انویسٹیگیشن کا اور فرسٹ رپورٹ کا، وہ آتے ہی کینین حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کرے گی، اور وزیر اعظم نے وزارت داخلہ اور فارن منسٹری کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ تمام جو پروسیجرل ایڈمنسٹریٹو ورک ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ ان کی والدہ سے بات بھی کی ہے اور ان کو بھی انشور کرایا کہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور انویسٹیگیشن کو حتمی شکل تک پاکستان خود۔ ان کی اہلیہ محترمہ جویریہ صدیق جو کہ خود بھی صحافت سے وابستہ ہیں، ان سے منسوب آج خبر ہم نے دیکھی، ان سے صحافیوں نے گفتگو بھی کی، کچھ ان کے قریبی رفقا نے جا کے بات کی۔ وہ گزارش کر رہی ہیں کہ میڈیا اور کیمرہ ان سے دور رہے۔ وہ یہ کہتی ہیں، ان سے جو منسوب بیان ہے، کہ دبئی میں وہ مڈل ایسٹ میں تھے، ان کا ویزا ختم ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے افریقی ملک کینیا کا انتخاب کیا جہاں ویزا آن ارائیول موجود ہے۔ شامی صاحب سہیل بڑائچ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس ناگہانی موت اور اس قدر سیاہ دن کے اوپر میری خواہش تھی کہ آپ جیسے استاد اور سہیل صاحب جیسے استاد جو ہیں ان سے ہم بات کر سکیں، اور سوال جو اٹھ رہے ہیں ان کا جواب ڈھونڈ سکیں، اور وے فارورڈ پہ بات کر سکیں۔ دیکھیں، یہ تو بہت صدمے کی بات ہے۔ میں نے تو جب یہ خبر پڑھی ہے، میں تو پہلے سمجھا کہ شاید کسی نے مذاق کیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جب قریت پڑتال کی تو معلوم ہوا یہ خبر ایک حقیقت ہے۔ جی ہاں، پہلے تو پر اسرار ایک پردہ چھایا ہوا تھا کہ کون ہے، وہ وہاں کیسے پہنچے، پھر کیا ہوا، لیکن آہستہ آہستہ پھر تفصیلات سامنے آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں دنیا نیوز میں بھی وہ جی ہمارے یہاں ڈائریکٹر نیوز بھی رہے، پروگرام بھی کرتے رہے، بیورو چیف بھی پروگرام رہے، بھی کرتے رہے۔ کیوں کے نام سے پروگرام کرتے اور تھے، بیورو چیف بھی تھے اسلام آباد میں۔ سہیل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، امید ہے آپ شامی صاحب کو سن رہے ہوں گے۔ جی، وہ یعنی ان کے ساتھ مجھے کو بہت زیادہ کام کرنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن ایک ہم پیشہ ہونے کی حیثیت سے، 50 سال کی تو عمر تھی ساری ان کی، بڑے جوان رانہ اور بڑے جوش و جذبے کے مالک تھے، جو اپنی بات کہتے پھر ایک خاص طریقے سے ڈٹ جاتے اس کے اوپر، ایک ہنگامہ پرور شخصیت تھے۔ تو اس لحاظ سے مجھے ان کی کئی باتوں سے اختلاف ہوتا، لیکن جو ان کا جوش و جذبہ تھا، جو کمٹمنٹ تھی، جو اپنے جو لگن تھی، اس سے نے مجھے ہمیشہ بڑا اٹریکٹ کیا، اور میں ان کی بڑی داد دیتا رہا۔ تو مجھے تو بس ایسے معلوم ہوتا ہے، آپ بھی بڑے گہرے صدمے میں دکھائی دے رہے ہیں شامی صاحب۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے گھر سے کوئی میت اٹھی ہے، اللہ اکبر، ایسا ہی ہے اور پورا ہمارا بالخصوص وہ تمام لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا نا جی، وہ تو ویران دن ہو بھر گیا۔ بس ہمارا جو میدان صحافت ہے، ایک یا شخص کوچہ سارے شہر صحافت کو ہے، ویران کر گیا۔ بڑے ایک بے باک، جری اور بڑے ایک دبنگ آدمی تھے، اور اپنی بات کہتے تھے پر اس پہ
इसरार करते थे, अड़ भी जाते थे, एक निराला बांक बनता था। बड़ा साहब, सुबह से ये ख़बर सामने आई है, ईवान में भी ज़िक्र हुआ, वहाँ भी साफ शफाफ तहकीकात की बात हो रही है, मुख्तलिफ़ बार्स भी मैदान अमल में आ चुकी हैं, सहाफ़ती इदारे, सहाफ़ती तंजीमें भी इस पर मज़म्मत कर रही हैं, इस अफसोसनाक वाक़े पर शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की बात कर रही हैं। लेकिन ऐसा ये वाक़या ऐसे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हुआ नहीं जिसकी जो इर्ताश है या लहरें हैं वो तूलो अर्ज़ तक महसूस की गई हूँ। क्या कहते हैं आप इस अफसोसनाक वाक़े पर? बड़ा ही अफसोसनाक और बदकिस्मत वाक़या है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है और बड़ी पुरस्कारियत में ढका हुआ है कि कैसे वो कीनिया चले गए और फिर कीनिया से दूर एक सड़क पर वो कैसे उन्हें मिस्टेकन आइडेंटिटी में गोली लग गई। ये सारा कुछ इसरार में ढका हुआ है जी। और जाहिर है ये खुलना चाहिए। कीनिया पुलिस की कोई रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, उस पे अल जज़ीरा ने एक डॉक्यूमेंटरी बना रखी है उनकी, डॉक्यूमेंट्री बना रखी है और हमारे यहाँ जो तीसरी दुनिया के मुल्क हैं, यहाँ इस तरह से इस तरह के वाक़यात को आप कह नहीं सकते कि नहीं होते। तो ये लेकिन बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक, इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का और वो इस तरह एक अचानक सड़क के ऊपर और कीनिया की पुलिस की गोली से कत्ल हो जाए तो बड़ा हैरान कुन भी है, अफसोसनाक भी है, अंदोनाक भी है। बड़े जोशो जज्बे वाले थे, बड़ा साफ शफाफ उनका जो छवि आती थी टीवी पर, टाई लगाए हुए, सूट पहने हुए, ऑलवेज अलर्ट और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उन्होंने की। उन्होंने बतौर फुल फ्लेज साफ़ी भी डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे, तो बहुत सारी जेहतें थी उनकी और अपना जो टाइम था बड़ा भरपूर गुजारा। आजकल कुछ उनके दिन अच्छे नहीं थे, लगता था कि जैसे कोई उनके मामलात ऊपर के हलकों से अच्छे नहीं हैं, इसीलिए शायद वो पहले दुबई गए और दुबई से फिर कीनिया गए या मामलात अपने दुरुस्त कर रहे थे। लेकिन सुना है कि वो बोल उन्होंने ज्वाइन कर लिया था और दोबारा आने वाले थे। तो बहरहाल ये हम सब के लिए बड़ा अफसोस है। सुबह से शॉक में हम सारे लोग, इतनी जवान मौत और एक ऐसा कुलीग जिसको हम देखते थे, सुनते थे, बहुत ही अफसोस हुआ। तो सुहेल साहब, अब हम तो बेबसी से देख रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा किससे क्या मुतालबा करें। सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही हैं। असल अलमिया भी यही है सर, खुद हमारे जो जन्म लेते जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उन्होंने जो ट्वीट किया तो उससे भी कुछ मतलब एक अजीब सवालात खड़े हो गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए बहैसियत कौम, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें जोर देना चाहिए कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने वैसे तो कीनिया पुलिस ने खुद भी कहा है कि इसका रिव्यू किया जाएगा और जो पुलिस कमीशन है जो उसका जायजा लेगा, लेकिन हमें इसको ज्यादा जोर से परसू करना चाहिए। साफी तंजीमों को भी, पाकिस्तान की एम्बेसी को भी, पाकिस्तान को भी, कि एक इतना बड़ा नाम और पाकिस्तानी शहरी और इस तरह उसका सरे बाजार और सरे सड़क जो है, सड़क के ऊपर इस तरह से कत्ल, ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही बड़ा जुर्म है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कीनिया पुलिस ने ये ज्यादती की है और उन्होंने ये माना भी है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी, जी मान रहे हैं, ये भी तस्लीम किया है उन्होंने कि भाई हमने गलत मिस्टेक की है, तो इसका उनका मदावा होना चाहिए और कम से कम जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तो कम से कम है। तो अभी तो देखें ना, इमरान खान साहब ने ये कहा है, नहीं उनके तो सर बड़े एक सीरीज़ है ट्वीट्स की, बड़ा ऐसा शामी साहब आपको अर्ज़ कर देता हूँ। वो कहते हैं इस कत्ल ने मुल्क भर में शदीद सदमे की लहर को जन्म दिया है। इस कत्ल ने अरबाबी इख्तियार से सवाल पूछने या उन्हें हदफ तनकीद बनाने की जिसारत करने वाले हर फर्द को निशाना बनाए जाने के रवां सिलसिले को फिर से उजागर किया है। शहरियों को आइन के तहत मुयस्सर बुनियादी हकूक़ की फराहमी और इन्हें रियासती और हुकूमती ज़्यादतियों से बचाने और महफूज रखने के लिए हमारी आला अदलिया कब हरकत में आएगी? देखें, जितने भी हमारे जज्बात मुश्तइल क्यों ना हों और हम जितनी भी सदमे में क्यों ना हों, बहरहाल एक पूरी जिम्मेदारी के साथ मामले को देखना चाहिए। वो वतन से दूर दुनिया से रुखसत हुए हैं। क्या कहा उन्हें कि
बड़ा ऐसा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। रख ली मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की शर्त, मारा दियारे गैर में मुझको वतन से दूर। वतन से दूर। क्या उनकी हुकूमत थी, उनकी आवाज़ गूंजती थी, फिर हालात ऐसे पैदा हुए कि उन्होंने समझा कि वो यहाँ काम नहीं कर सकते, बैरून मुल्क चले गए और वो फ़ज़ा भी उन्हें रास ना आई। तो अल्लाह ताला उनकी ये कुर्बानी कबूल फरमाए और हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने मुल्क को एक बेहतर माहौल दे सकें, आज़ादी की फ़ज़ा दे सकें, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें और एक दूसरे का एहतराम कर सकें। जो हमारी पीबी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स की तंजीम, वो और फिर जो कीनिया में जो राइटर्स गिल्ड है, इन दोनों ने ये मुतालबा किया है कि इस मामले की आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी इसकी तो बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। और यही नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, लाहौर में पंजाब बार और दीगर बार्स के साथ साथ ईवान तक ये मामला चला गया जी, कौमी असम्बली में भी। असल में देखना वहाँ भी चाहिए ये कि मुतालबा हो रहा है। हम इसमें कहाँ तक कर सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि मुश्तरका तहकीकात होनी चाहिए। कीनिया की जो पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे। आलमी सहाफ़ती इदारे हैं या सहाफ़ती तंजीमें हैं, जैसे कंसोर्शियम फॉर जर्नलिज्म प्रोटेक्शन सेफ्टी है, इनको भी ऑन बोर्ड रखना चाहिए। ये भी इस मामले को अगर टेकअप करें। नहीं, तहकीक तो बहरहाल तफ्तीशी इदारे ही करेंगे और किसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि ये हादसा जिस तरह हुआ। अब कीनिया तो देखें ना, कीनिया एक ऐसा मुल्क है, अब मैं वहाँ एक दफ़ा जाने का मुझे इत्तफाक हुआ बरसों पहले, यानी आप चंद किलोमीटर का फासला जो था ना, वो भी आपको एडवाइस किया जाता था कि आप पैदल ना जाए। जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था उससे रेस्टोरेंट जो था खाने का 2-3 किलोमीटर होगा, वो भी कहते थे गाड़ी में बैठ के जाएं। और फिर ये है कि आपका हाथ आपका यानी बाहर नहीं होना चाहिए, आपका शीशा जो है खुला नहीं होना चाहिए गाड़ी का। वो इत्तफाक से मैं जिस गाड़ी में बैठा, कुछ दूसरे दोस्त भी साथ थे, वो शीशा ऐसे बैठा तो खुला था और मैंने हाथ किया हुआ था। एकदम एक घड़ी थी मेरी पहनी, वो ये जो शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ थे सऊदी अरब के, उनने तोहफे में दी थी, और वो एकदम किसी ने कोई झपटा है और वो घड़ी जो था उतर गई, ले गया। तो वहाँ तो एक अजीब किस्म की कैफियत है। और ये स्ट्रीट रॉबर्स जो हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं, यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते जो सूरत हाल है। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, ये एक तस्वीर आ जाइए, मतलब देखना ये है कि वहाँ क्यों गए थे, कैसे गए थे। कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि कुछ कीनियन सहाफ़ी भी आज आपने देखा होगा ट्विटर पर मंजर आम पर आए हैं जो अपने इदारों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह से एक इलूद की भी सहाफ़ी हैं, वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जी ये नैरोबी अरशद साहब कब आए, फिर ये मगादी जो टाउन जहाँ पे ये वाक़या, वहाँ किस सिलसिले में गए, किसके साथ गए, इनको किसने होस्ट किया और किसके यहाँ ये ठहर रहे थे, और ड्राइवर ने क्यों नहीं गाड़ी रोकी, और पुलिस ने गलत फहमी का मुजाहरा क्यों किया, पुलिस ने क्यों गलत फायर किए। ये कई सवाल जो है उठ रहे हैं। ये जो GSU है, जो जनरल सर्विस यूनिट है कीनिया का, नाज़रीन ये मैं आपको बता दूं कि ये इनका पैरा मिलिट्री विंग है कीनियन पुलिस का, ये उससे मंसूब वाक़या है। आपने एक और तस्वीर भी देखी होगी जहाँ पे पाकिस्तानी सिफारतखाने के हुकाम कीनियन हुकाम के साथ बैठे हुए हैं, जो कि अरशद साहब की जो बॉडी है उसकी हुसूल के लिए वहाँ बात हो रही है। तो सकलैन सैयदा साहिबा पाकिस्तानी खातून एम्बेसडर हैं नैरोबी में, ये बग़ैर किसी इफ्स एंड बट्स के सर मैं उनको दाद देना चाहूँगा और ये वाजे करना चाहता हूँ कि जो आपने तस्वीर देखी एक शख्स के मोबाइल पे गेम चल रही है कैंडी क्रश, ये सकलैन सैयदा साहिबा हमारी एम्बेसडर नहीं है और अमले का शख्स है। ये खातून तो पिछले जब से वाक़या हुआ सो नहीं सकी और मुसलसल कीनियन हुकाम से रब्ते में है, कोशिश कर रही हैं कि उनकी फ़ौरन बॉडी का हसूल हो, दफ्तर ख़ारजा भी ऑन बोर्ड है, जल्द से जल्द बॉडी जो है वापस आए। लेकिन इस वाक़े के ऊपर जो एजिटेशन या गम और एक रद्दअमल है वो बड़ा खौफनाक है, जो कि इस बात का पैगाम दे रहा है कि इस वाक़े को आम रंग देने से या लेने से लोग कासिर हैं। इसकी पुरअसरारियत में सवाल उठा रहे हैं। बस इसकी ये तहकीक होनी चाहिए, एक एक कड़ी जोड़नी चाहिए, एक एक सवाल का जवाब मिलना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि वहाँ किन हालात में कैसे किन लोगों के साथ वो थे और क्या उनका मकसद था वहाँ जाने का।
क्योंकि वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, जी हाँ, यानी आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कीनिया में चले जाएं ठप्पा लगा दिया जाता है एयरपोर्ट पर। तो ये भी एक अट्रैक्शन होती है वहाँ। लेकिन ये है कि बहरहाल जब तक ये तह दर तह जो वाक़यात हैं ये खुल के सामने नहीं आएंगे, हम दिल बेचैन रहेगा और उसको चैन नहीं आएगा। आज कुछ सियासी रहनुमा भी इनके अहल खाना से ताज़ियत के लिए पहुँचे, तो देखिए शाहमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब क्या कह रहे थे। उनकी वालदा की जो ख्वाहिश है कि उनका जस्ते खाकी जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाया जाए, वो कर्ब में है। उनका बोझ हल्का होगा अगर वो अपने बेटे का चेहरा देख सकें और उसको अलविदा कह सकें। जिसको वो सच समझता था वो बोलता था, दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, वतन से मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला, जो उसको विरसे में मिला था, वो विरसा उसका नज़र आता था, उस मट्टी से मोहब्बत का। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। सच सामने आना चाहिए। जुडिशल, मैंने अपनी ट्वीट भी की है, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और सच को हर हालत में सामने आना। इसमें कोई दो राय हो नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी फ़ोन किया है, उन्होंने कीनियन भी जो फ़ोन सदर किया, हैं। मरियम भी वहाँ पहुँची हैं। देखिए ये कौमी सानिया है, ये कोई सियासत की नज़र नहीं इसको होना चाहिए। वो हम सब के थे, इख्तलाफ राय तो होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो हम सब के थे, हम सब का गम है और सबको मिलकर इसका सुराग लगाना है और जो ज़िम्मेदार हैं उनको बेनकाब करना है। किस माहौल में कैसे ज़मीन तंग हुई उन पे वतन की और कैसे वहाँ पहुँचे, ये कहानी जो है खुलनी तो चाहिए ना। ये सवाल तो सारी उम्र उठेंगे सर, जब तक और इसका देखिए सुराग नहीं उनके वालिद का इंतकाल हुआ, मैं वो अर्ज़ करूँ, तो भाई जा रहे थे। 8 से 10 साल पहले का ये वाक़या है। उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उनके एक छोटे भाई थे जो उस वक्त मेजर थे शायद, वो पेशावर से KPK से वापस आ रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। तो अरशद साहब को एक नहीं बल्कि दो मईतें जो हैं वो उतारनी पड़ी उनकी वालदा जो है लहद में, और उन पे क्या गुजर रही हो। अब उनकी वालदा का ये सहारा थे, अहले खाना है बिल्कुल, और उनके जो बेगमात हैं, जो बच्चे हैं, अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे, हौसला दे। हम तो उनके साथ दर्द में बिल्कुल भरपूर शरीक हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं चुपते हुए, उनके जवाब ढूंढना होंगे, वगरना ये बेचैनी जो है ये मुआशरे को मज़ीद बेचैन करेगी, मुआशरे को मज़ीद तकसीम करेगी। एक ब्रेक यहाँ ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो रुख करेंगे इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की जानिब जो इमरान खान साहब की नाअहली का बायस बना है, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी केस की आज समाअत थी, और फिर भारतीय सियासतदान, भारतीय निजात सियासतदान बरतानवी, भारतीय निजात क्यों कहते हैं आप? तो क्या कहें, गुजरांवाली निजात? पाकिस्तानी निजात नहीं, वो तो उनके दादा थे। दादा जो थे वो तो चले गए ना, वो तो पैदा हुए बैरून मुल्क। चलिए बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अरशद शरीफ साहब का जिक्र हो रहा है और हम में नहीं है, नागहानी कत्ल हुआ उनका। अब ताज़ा ख़बर यह है कि जो कीनियन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है सर, एक मौसर बॉडी है वहाँ पर सहाफ़ियों की, उन्होंने कदम आगे बढ़ते हुए एक बड़ा अहम मुतालबा किया कि चूँकि कीनियन पुलिस ने एडमिट किया है कि ये मामला जो GSU है, यानी उनकी जो जनरल सर्विस यूनिट है, जो पैरामिलिट्री विंग है कीनियन पुलिस का, उसकी जानिब से ये हुआ और उसकी गलती का एतराफ़ किया है, लिहाजा वो ये कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए जो कि इस वाक़े में मुलव्विस हैं और उनसे तफ्तीश की जाए। ये कीनियन जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उनका बड़ा अहम मुतालबा ये सामने आया इस सिलसिले में। मतलब कीनिया की जिम्मेदारी है कि इसकी तफ्तीश करे और पाकिस्तान की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक करे, बल्कि मेरा तो ख्याल है मुश्तरका तफ्तीश होनी चाहिए, पाकिस्तान को अपने तफ्तीशी भेजने चाहिए यहाँ से। बिल्कुल ठीक। आप बात कर रहे थे उनकी ऋषि सोनाक साहब की, ऋषि सोनाक की, ये सोनाक जो है 4 माह के अंदर तीसरे बरतानवी वज़ीर आज़म होंगे, वहाँ को ऐसी सियासी अफरा तफरी फैली हुई है। अब देखिए उनके मुकाबले में जो लोग खड़े हुए थे उसके लिए वो कोई क्वालिफाई नहीं कर सका, क्योंकि 100 अरकान जो हैं पार्लियामेंट के, जी, कंजर्वेटिव पार्टी के, अगर उसकी तौसीक करते, यानी किसी का नाम पेश करते, फिर वो मुकाबले में शरीक हो सकता था। वो हुआ ही नहीं, नॉमिनेशन नहीं हो सकी। नॉमिनेशन नहीं हो सकी, तो बिला मुकाबला इंतखाब उनका हो रहा है। और रशीद सुनाक जो हैं, देखिए ये खबरें लग रही कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। नहीं, आपने दुरुस्त कहा कि हम उसे कहें गुजरांवाला से, गुजरावालवी हैं, यानी आप समझे पाकिस्तानी ओरिजिन के, समझे पंजाबी ओरिजिन के, क्योंकि उनके दादा जो थे वो यहाँ से गए थे, मशरकी अफ्रीका चले गए, नेरोबी नैरोबी गए ना,
अफ्रीका गए, जॉब की उन्होंने। उनकी वालदा तंजानिया, उनके वालदन ननिहाल तंजानिया की, दुधियाल कीनिया में। तो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ से वो रुखसत हो चुके थे और फिर चले गए वहाँ से बरतानिया। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ओरिजिन उनके ख़ानदान का गुजरांवाला ही करार पाएगा। गुजरांवाला, हाँ, यहीं के थे। और गुजरांवाला फिर वो चले गए वहाँ बरतानिया और वहीं पैदा हुए। ऋषि सुनक जो बरतानिया है में तालीम पाई, वो तो वेंचेस्टर कॉलेज में पढ़े हैं। कहते हैं 6 वज़ीर ख़जाना वहाँ से अभी तक। ये भी तो साबका वज़ीर ख़जाना है ना। हाँ, 6 वज़ीर ख़जाना और ये नहीं वहाँ बल्कि से पैदा हुए हैं। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट की इनके बारे में कि ये अमीर तरीन जो अफराद हैं ये और उनकी अहलिया बरतानिया की उनमें शुमार होते हैं। इनकी दौलत का उन्होंने अंदाज़ा लगाते हुए ये कंपैरिजन किया है कि ये जो बादशाह हैं इस वक्त बरतानिया के, उनसे कहीं ज़्यादा अमीर हैं, यानी 824 मिलियन डॉलर के $1 बिलियन के करीब है। हाँ। $1 बिलियन। देखें, इनके वालिद डॉक्टर थे, वालदा फार्मासिस्ट थी, छोटी फार्मेसी चलाती थी, उसका हिसाब किताब भी ये रखते थे। लेकिन जब ये गए ना फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे अमेरिका गए हैं और वहाँ से MBA किया है, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है अक्षता मूर्ति से। और अक्षता मूर्ति जो है एक बिलियनर की बेटी, बहुत बड़े यानी सरमायाकार की। तो अब उनसे शादी हुई, तो अब इनकी जो अहलिया हैं उनकी वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा बताई जाती है। बिल्कुल ठीक। ये पहले नॉन वाइट ये लफ्ज़ कहते हुए मुझे अजब लग रहा है, लेकिन ये सुर्खियाँ अंग्रेजी एशियाई, हाँ यूँ कह लें, पहले बहरहाल बरतानिया ने इतना अरसा हुकूमत की है हम पर, तो फिर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। चल, अब गुजरांवाला उन पे हुकूमत करेगा। अब गुजरांवाला उन पे हुकूमत और करेगा। याद रहे कि इंतखाब अगला बरतानिया में 2025 में है। सुहेल साहब जो हैं अजीजी, हाँ। उनको खबर कर देनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, कि गुजरांवाला से वज़ीर आज़म हो गया। गुजरांवाला नहीं, वो अपने प्रोग्राम में हस्बे हाल में जिक्र तो करेंगे इनका। अच्छा सर, वापस आ जाते हैं ज़रा खान साहब के जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, फिर जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा की गई थी कि इनका नाअहली का फ़ैसला फौरी मुअत्तल किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुसद्दक़ा फ़ैसला आने से पहले हुक्म इम्तनाअ जारी नहीं कर सकते और वो चाहें तो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। आज ही फ़ैसला मुस्तरद करने की, मुअत्तल करने की इस्तदा थी। आमिर सईद अब्बासी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया और इस पूरी कार्रवाई पर गहरी नज़र रखे हुए, उनसे मुख्तलिफ अहवाल जान लेते हैं। आमिर जी फरमाइए। पहली बात तो ये जो वकला हजरात हैं, हाँ जी, वो कुछ खुदा खौफी करें। किस मामले में? कि भाई फौरी मुअत्तल कर दें। आप मुसद्दक़ा नकल जो है वो आप फराहम नहीं कर सके। टेक्स्ट आज आया है फैसले का, अदालत ने कहा कि हम ऐसा कहा जी, अदालत को हुक्म दें इलेक्शन कमीशन को आज ही फैसला जारी करें। उन्होंने कहा हम ये काम नहीं कर सकते और ऐसी बुरी नज़ीरें कायम नहीं करेंगे। आप फैसला आ जाए, उसके बाद आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लाएं, ताकि अपील तो उसके ऊपर होगी ना, जब फैसला ही सामने नहीं है और फिर उसके दलाइल सामने नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आमिर, ये क्या कहा फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? जनाब जस्टिस आतर मिनुल्लाह साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे। PTI प्ली क्या ले रही थी? शामी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज जब समाअत की तो अदालत ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ात हैं। सबसे पहला एतराज़ तो ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद पेश नहीं हुए, उन्होंने अपने बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं की, लिहाजा वो ज़रूरी है। जिस पर बताया गया बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से कि उनको खदशात हैं, सिक्योरिटी और थ्रेट्स हैं, लिहाजा वो पेश नहीं हो सकते। तो इस पर अदालत ने कहा कि वो अपने अटर्नी के ज़रिए पेश हो सकते हैं और उनका अटर्नी जो है वो बायोमेट्रिक कर सकता है। उस एतराज़ को आप दूर कर लें। दूसरा एतराज़ अदालत ने यह कहा कि आपने मुसद्दक़ा जो कॉपी है ऑर्डर की वो नहीं अटैच की। तो उस पर अदालत ने कहा कि आप जिस ऑर्डर को सस्पेंड करवाना चाह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इस हुक्म को मुअत्तल कर दिया जाए, तो वो तो ऑर्डर ही हमारे सामने नहीं है, वो तो महज एक अनसाइंड कॉपी है जो व्हाट्सएप के ज़रिए आई है, हम कैसे इसको मुअत्तल कर दें? तो बैरिस्टर अली ज़फ़र उन्होंने ये कहा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना है, सियासी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अदालत ने कहा कि अदालत किसी भी सियासी कॉम्प्लिकेशंस के मामले में नहीं जाएगी, आइन और कानून के मुताबिक चलेगी। तो अदालत ने उन्हें कहा कि आपको जल्दी क्या है, ये एक रूटीन मैटर है, एक ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के तहत तमाम तर कार्रवाई करके एक ऑर्डर पास किया है। अगर आपको ऑर्डर पर एतराज़ है कि वो खिलाफ आइन और खिलाफ कानून है, तो उसको जब उसकी मुसद्दक़ा कॉपी आएगी आप उसकी अपील फाइल करेंगे, अदालत उसको टेकअप कर लेगी मेरिट के ऊपर। तो इसमें जल्दबाजी क्या है?
تو علی ظفر نے یہ کہا کہ عمران خان مزید الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو عدالت نے یہ کہا کہ کیا وہ الیکشن لڑ کے اسمبلی جانا چاہتے ہیں؟ تو اس پر علی ظفر نے کہا کہ نہیں، وہ تو بات کا معاملہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن لڑیں۔ تو عدالت نے کہا کہ جس شک کے تحت 63(1)P کے تحت آپ کو سزا دی گئی ہے یا الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس کیا ہے، اس میں کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ آئندہ آنے والا جو 30 اکتوبر کا الیکشن ہے جو قرم ایجنسی میں ہو رہا ہے وہ نہیں لڑ سکتے۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو وہ بڑا آپ کے لیے اوپن گراؤنڈ ہے کہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اس پر علی ظفر نے کہا کہ صرف الیکشن لڑنا نہیں ہوتا، ہمیں سیاسی طور کے اوپر بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت سی نااہلیاں ہوئی، کوئی سیاسی طوفان نہیں آیا، امید ہے کہ اس سے بھی کوئی سیاسی طوفان نہیں آئے گا۔ آپ میرٹ کے اوپر اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کریں، دستاویزات مکمل کر کے آئیں، تب عدالت آپ کی استدعا سنے گی۔ تو بار بار علی ظفر عدالت سے یہ استدعا کر رہے تھے کہ اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ عدالت کوئی نئی اور غلط روایات قائم کر دے کہ ایک آرڈر ابھی ہمارے سامنے ہی نہیں ہے، کیا یہ مصدقہ ہے یا نہیں ہے، اس بات کی تصدیق عامر ایک بڑا اہم نقطہ، ایک تازہ خبر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہو رہا تھا سر، اس میں ابھی رپورٹ کریں ہمارے صحافتی دوست کے اس اجلاس میں جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی ایلیویشن کی منظوری دے دی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے، اور اسی طرح جسٹس حسن اظہر رضوی، ان کا تعلق سندھ ہائی کورٹ سے، یہ بھی سپریم کورٹ میں ان کی ایلیویشن کی منظوری دی ہے، جو ظاہری بات ہے ایک پروسیس کے تحت آگے جائیں گے۔ پھر جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، ان کی بھی منظوری دی ہے۔ تو اگر یہ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اگلی سماعت میں ہوں گے؟ فوری طور پر تو نہیں جائیں گے نا، اچھا، ابھی تو یہاں سے آئے گا، پھر پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی، پھر اس کے بعد ایلیویشن ہوگی۔ لیکن جب بھی ایلیویشن ہوگی تو جو نئے چیف جسٹس ہوں گے وہ اس کو سماعت کر لیں گے۔ ایک نقطہ اور بڑا زیر بحث رہا جب سے توشہ خانہ ریفرنس میں فیصلہ سامنے آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، کیا یہ معمول کا واقعہ تھا یا غیر معمولی تھا کہ جی فیصلہ نہیں آ رہا، مصدقہ دستخط شدہ 2 صفحات آئے ہیں، ایک رکن نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، یہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیے یہ معاملہ آج عدالت میں بھی ٹیک اپ کیا گیا، تو بیرسٹر علی ظفر نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کیونکہ ٹریبیونل ہے تو ٹریبیونل میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ پہلے سنا دیا جائے اور سائن بعد میں لیے جائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ممبر کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کیسے آرڈر پاس کر دیا گیا۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ ایک روٹین میٹر ہے، ہم بہت سی عدالتی کارروائیوں میں بھی جو سینئر جج ہوتے ہیں، جو ممبر ہوتے ہیں، وہ آرڈر ایشو کر دیتے ہیں یا آرڈر جو ہے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دستخط لے لیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے عدالت نے وضاحت کی کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور انتظار کیا جائے کہ ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی آرڈر میں کوئی تبدیلی کر دے گا یا کسی بھی طریقے سے اس میں کوئی ایسا پیراگراف انٹر ہو جائے گا جس سے آپ کو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ ایک آرڈر تھا، اوپن الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے، اب اس کا تفصیلی فیصلہ آئے گا، تمام ممبرز دستخط کریں گے، تو آپ اپنے وقت کا انتظار کریں۔ الیکشن کمیشن جلد ہی امید ہے کہ جاری کر دے گا، اور وہی ہوا کہ آج ہی الیکشن کمیشن نے وہ مصدقہ فیصلہ مکمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، لہٰذا 3 دن تک یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ عدالت چاہتی تھی کہ یہ 1 ہفتے تک ملتوی کر دی جائے، لیکن جو عمران خان کے وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر، وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور جلد سے جلد اس آرڈر کو معطل کر دیا جائے اور عمران خان کو اہل قرار دے دیا جائے، لیکن عدالت نے کہا کہ تمام جو کارروائی ہے وہ قانون کے مطابق ہوگی اور اپنے وقت پر ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی سے۔ یہ جو پنجاب کے تھے نا ممبر، وہ بھی ان کی اہلیہ ان کو ڈینگی ہوا ہے، اس لیے وہ اسلام آباد نہیں جا سکے، تو دستخط ان کے ہو گئے ہیں، یہ فیصلہ جاری ہو گیا ہے۔ اب تفصیل اس کے سامنے آ جائے گی، جو اس کے آرگومنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب علی ظفر صاحب شوق پورا کر لیں، اپنے وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اور مگر ایک بات میں آج بتاؤں، بتائیے، اور بات جو اعظم سواتی صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی، ہاں جی، اس میں بھی میرا دل بڑا دکھا ہے۔ جو انہوں نے بیان کیا اپنے ساتھ پیش، انہوں نے کہا میرے ساتھ میری جو بے عزتی ہوئی ہے کپڑے میری اتارے گی، بچیوں کے سامنے، چھوٹی پوتیوں کے سامنے، کہ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں خودکشی کر لیتا، مجھے تو بہت شرم آئی ہے۔ یہ کون بھیڑیے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ ان کو کون لگام دے گا، کون پٹا ڈالے گا؟ یہی ایک سوال ہے۔ اور جیسے ارشد صاحب کے نام حاجات پروگرام ہم نے کیا، دعا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہماری یادوں میں، ہمارے دلوں میں ہمیشہ وہ عدالت کا کام ہے تہ تک پہنچے، بالکل، اور جس شخص نے بھی ایسی حرکت کی ہے اور اس کو ساتھ مثالی اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے، مثالی کارروائی کی جائے اس کے خلاف۔ یہاں ناظرین ایک بریک۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کل، تب تک لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔